Hello, everybody, teachers, students, young, old, all generations. Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you are watching this video. My name is Junaid Memon, and I've been asked to give my perspective on Eid and the slaughtering happens during the Eid, which is called Qurbani. मैं इस पूरी डिटेल पे डिस्कशन पे मैं आगे जाऊँ उसके पहले थोड़ा सा आई वांटेड टू टेक यू बैक इन द हिस्ट्री फ्रॉम द स्टोन एज और वॉट एवर टाइम and or maybe not stone age will be too like far. Let's talk about where the origin of religion, wherever we know the traces, is about almost 10,000 years. Before that there has been no trace of any religion. The religion came in existence, all kind of religions. We can always debate, and there's nothing to debate about it, that because religion is some matter we should not debate, but we need to understand or decode the science behind it. कि जब हमको कोई भी रिचुअल्स बताए जाते हैं किसी भी रिलीजन में अक्रॉस द वर्ल्ड, वेदर हम वी ओनली नो अबाउट 4-5 रिलीजन विच एग्जिस्ट इन इंडिया और विच आर मोर पॉपुलर इन इंडिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर रिलीजन विच दैट डज एग्जिस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी विच नॉट इवन नो द नेम. सो इट अबाउट मोर देन 100 इन दैट सेंस. पर आप अगर कभी भी उन सब की हिस्ट्री और उनके सबके रिचुअल्स के बारे में देखेंगे तो हर रिचुअल्स में कहीं ना कहीं एक साइंस है. हम अगर उस साइंस को समझने लगते हैं और ब्लाइंडली किसी भी रिलीजन के चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, देन इट्स आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे टू डू इट. सो I wanted to talk about these practices because it's very important for all of us to see the science seriously beyond just rituals. So एक डिबेट तो ये हो सकता है कि क्या हमको नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, या नॉन वेजिटेरियन इज गुड बैड अगली, बिकॉज देर इज a decent number of people who don't eat. But if you go by the entire world's population and the ratio, about 80% people in this world are non-vegetarian, and about 20 odd or 15 odd percent would be vegetarian, and a large chunk of those vegetarian live in India. अब इंडिया में क्यों वेजिटेरियन ज़्यादा हुए, जो भी थोड़े बहुत हुए, उसकी वजह क्या थी? इफ़ यू गो बैक टू हिस्ट्री देन यू रियलाइज, ओ माई गुडनेस, सो दिस वाज द मेन रीज़न. अदरवाइज other parts of the world where there is no vegetation, there is no farming, they had no option but to eat the animals. और ये पूरा का पूरा जो कुदरत का बनाया हुआ सर्कल है जिसको हम फूड चेन की बात करते हैं. So there are multiple animals which is part of the food chain, and we need to accept that practically, because अगर जंगल में अगर शेर है तो शेर के साथ में बहुत सारी हिरन और बहुत सारे दूसरे जानवर भी बनाए गए हैं ताकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सके. अगर शेर नहीं होगा जंगल में और सिर्फ हिरन होंगे तो पूरा का पूरा जंगल खा जाएंगे वो. एंड हिरन और कुड बी एनी अदर वेजिटेरियन, अ लॉट ऑफ अदर एनिमल. If you have only all vegetarian animals, they will eat up entire greenery, and they will not even run. They will not do exercise. They will not move from their places. They need to get scared. While they're scared, and what they extract from the body, that is good for the soil. It's very weird things to say, but if you do little studies, you realize the extract of body from the animal, how it helps the environment, and how it helps the overall ecosystem. So everything is interconnected, whether it's civilization, which is us, where we have domestic animals which we consume for our food habits, and at the same time there's a jungle and all entire animal kingdom where there is multiple animals who are there. So whatever the leftover of a lion's hunt will be eaten by some other creatures. You know that. I hope you know that. There's vultures and all that. They come and finish the extra body parts. Why it is important? As I said, the whole ecosystem is designed in such a way. Our body is very useful for the soil. Whether it's human body, whether it's any animal body and all that, after decomposition, it becomes great manure for the fertility of the soil. And that's why across the world, except India, or maybe some other parts of the world, burial is the main form of finishing the end rituals of a human body. Most of the people bury it, and the burning only happens in India. I'll tell you why.
इंडिया में क्योंकि हम लोग, अगर आप 2000 साल 4000 पहले की बात करें तो जंगल ज़्यादा थे, हमारे पास फर्टिलिटी की कोई कमी नहीं थी, हमारी सॉइल ऑलरेडी कुदरत ने हमको फर्टाइल इतनी दी हुई थी कि हमको फर्टिलिटी की ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट हमको रहने के लिए जगहों की ज़रूरत थी, तो हमको जंगल काटने ज़रूरी थे। तो जंगल काट काट करके आप उन लकड़ियों का क्या करेंगे, कितने घर बना लेंगे आप। तो फिर उसका आपने इस्तेमाल किया जलाने के लिए, जिसमें आप चूल्हा भी जलाते थे। फिर उसको आपने ह्यूमन बॉडीज़ को जब आपको डेथ के बाद क्रीमेट करना होता था तो हमने उसमें इस्तेमाल करना शुरू किया। सो ये रिचुअल्स जो आते गए या जो चीज़ें बनती चली गई, ये इंसान की ज़रूरत के हिसाब से इट बिकेम द पार्ट ऑफ अ रिलीजन, बिकॉज इट्स ऑल डिज़ाइन बाय ह्यूमन। कि हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने आसपास का एक रिचुअल डिज़ाइन करते हैं कि हम इस तरीके से जिएंगे। सो वे ऑफ लाइफ, फॉर मी रिलीजन इज़ वे ऑफ लाइफ। सो आपने वे ऑफ लाइफ अपना डिज़ाइन किया बेस्ड ऑन दी योर एनवायरनमेंट, योर एटमॉस्फेयर, उस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी। उसके बाद आप बाद में देखते हैं कि वो वे ऑफ लाइफ बाकी जगहों के लिए कितनी वैलिड होती है, बिकॉज हमने दुनिया बदली, लोग ट्रैवल करने लगे, तो एक दूसरे की वे ऑफ लाइफ एक्सचेंज होनी शुरू हुई। एक्सचेंज होते वक्त हमने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। और इसमें क्योंकि इस्लाम सबसे आखिरी में आया है, अगर हम बहुत सारे पुराने रिलीजन के मुकाबले जब देखें तो इस्लाम क्योंकि सबसे आखिरी में आया हुआ है, तो उसने शायद बहुत सारे दूसरे पुराने रिलीजन से बहुत कुछ अलग 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 चीज़ें सीखी। और क्योंकि वो लेट आया था तो उनके पास वो लिबर्टी थी कि उसको एक बुक के फॉर्म में और एक मैनुअल के फॉर्म में आप उसको डाल सकें लिख करके कि दिस इज़ इट, एज़ कम्पेयर टू अदर ओल्ड रिलीजन्स जिसमें काफ़ी कुछ चेंज भी, बदलाव भी हुए थे समय के हिसाब से। और बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड नहीं थी, इट वाज नॉट रिटन। काफ़ी चीज़ें लिखी थी तो ऐसी भाषाओं में भी लिखी हुई थी विच पीपल डोंट नो इन टुडेज डे इन एज। बट या अल्टीमेटली चीज़ें सारी जगह सेम लिखी हैं। कहीं संस्कृत में बात हो रही है, कहीं अरबिक में बात हो रही है, कहीं हिब्रू में बात हो रही है, कभी किसी और लैंग्वेज में। सो ऑल दोज बुक्स, इवन वॉट एवर इज टेक्स्ट आर अवेलेबल, दे ऑल आर अवेलेबल इन अ वेरियस फॉर्म। एंड सबके अंदर कुछ चीज़ें जो लिखी हुई हैं, देयर आई एम कमिंग टू नाउ द मेन पॉइंट वेयर विच वी टॉकिंग अबाउट is a slaughtering of a goat or any other animal for that matter. Why it is important? I'll give you a simple example. As I said, it's a part of the food chain and we can always debate कि यार हमको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं सिर्फ थोड़े से लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। अगर ह्यूमन बॉडी उसको कंज्यूम करने के लिए डिज़ाइन नहीं होती, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ, तो हमारे पास इंटेस्टाइन वैसे नहीं होते जो दोनों को कंज्यूम कर सके। हम लोग 2 इंटेस्टाइन होते हैं, एक छोटा इंटेस्टाइन, एक बड़ा इंटेस्टाइन, अगर आप ह्यूमन बॉडी को देखें एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल। हमारे जो दांतों की बनावट है, अगर आप देखेंगे कैनाइल दांत होते हैं हमारे पास और फ्लैट दांत भी होते हैं, जो कि सभी जानवरों के पास नहीं होते हैं। अगर आप गाय को या फिर जो वेजिटेरियन जानवर जितने भी उनके दांत देखेंगे तो आपको सीधे मिलेंगे। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन जानवर को देखेंगे जैसे शेर या फिर सियार, इस किस्म के जानवर, तो उनके आपको दांत हमेशा तीखे मिलेंगे, बिकॉज दे आर डिज़ाइन टू चू ओनली रॉ मीट। बट ह्यूमन आर डिज़ाइन बैलेंस्ड विद द बोथ, और उनका डाइजेशन सिस्टम भी उसी हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम उसके लिए डिज़ाइन नहीं होता तो हम उसको कंज्यूम ही नहीं कर पाते। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। आप एक काम करें, कोशिश करें कि आप किसी वेजिटेरियन जानवर को, जैसे बकरी को या गाय को या किसी को आप मीट खिला कर देखें, वो नहीं खा पाएंगे। अगर ज़बरदस्ती आपने उनको खिला भी दिया किसी चीज़ से मिला करके, तो उनका हाजमा ख़राब हो जाएगा, शायद या तो उनकी डेथ हो सकती है या कम से कम उसका हाजमा ख़राब हो जाएगा। लेकिन हम खा सकते हैं बिकॉज हमको डिज़ाइन किया गया था। हमारे को कहीं ना कहीं उस बैलेंस को समझना पड़ेगा कि कुदरत ने हमको ऐसा ही बनाया है कि हम इसको खा सकते हैं, नहीं तो हमारी बॉडी इसको कंज्यूम ही नहीं कर पाती। शेर को आप घास नहीं खिला सकते, आप कोशिश भी करेंगे तो घास नहीं खिला सकते। वो एक रेयरेस्ट केस तो दुनिया में हर जगह होते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप सिर्फ घास खिलाना चाहें तो नहीं होंगे। लेकिन अगर आप नहीं खाना चाहते हैं मीट, तो आपके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आपको खाना चाहिए। दुनिया में जैसे मैंने कहा कि 80% नॉन वेजिटेरियन और 20% वेजिटेरियन हैं, तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई समस्या नहीं है। वो आपकी पर्सनल चॉइस है, खाना आपकी पर्सनल चॉइस है। नाउ अगर आप बोलते हैं, अब आप आते हैं स्लॉटरिंग के ऊपर। सो स्लॉटर हाउस में रोज़ स्लॉटर हो रहे हैं करोड़ों के तादाद में। अगर 700 करोड़ की अगर हमारी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, तो उनको फीड करने के लिए कम से कम 1 करोड़ एनिमल्स रोज़ कहीं ना कहीं काटे जाते होंगे अलग अलग लेवल पे। 1 करोड़ नहीं भी होंगे तो 50 लाख 70 लाख जानवर काटे जाते होंगे, अलग अलग साइज़ के जानवर। मतलब हम शायद इंडिया में बैठ करके काउ स्लॉटरिंग के बारे में अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन दुनिया के बाहर का मीट कंजम्पशन जो है, ख़ास करके जब बीफ की बात करते हैं, बीफ कंजम्पशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गोट कंजम्पशन, जिसको हम नॉर्मल मटन कहते हैं।
कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके, कुछ अरब कंट्रीज़ में या फिर इंडिया से कनेक्टेड कुछ आसपास के इलाकों में हमारे पास अभी भी गोट और शीप का कंजम्पशन ज़्यादा होता है. जस्ट फॉर दिस फॉर नॉलेज सेक, सी आई एम टेकिंग यू थ्रू ऑल दिस स्मॉल इन्फॉर्मेशन. हो सकता है इसमें से आपको छोटी सी चीज़ें काम आए. पूरे 8-10-15 मिनट का जो भी वीडियो हमारा बनेगा, ये मैं चाह रहा था कि आपको छोटे छोटे पॉइंटर्स में सब कुछ पता हो कि कहाँ क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है. हाँ, सो कंजम्पशन की बात कर रहे थे कि लाखों की तादाद में रोज़ कटते हैं. इमेजिन कीजिए कि अगले 2 साल के लिए एक भी जानवर ना काटा जाए तो क्या होगा. एक तो उन जानवर की पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि हमारे पास सड़कों पर शायद चलने के लिए जगह नहीं बचेगी. दूसरी बात, वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे बाकी वेजिटेशन जो हमारी दुनिया में बचा हुआ है. उनको भी खाना चाहिए, उनको भी जीना है, उनको भी बढ़ना है. और हम खुद भी जो 80% लोग, जो लोग सिर्फ अभी तक मीट इंडस्ट्री पे जी रहे थे, वो भी उस वेजिटेबल को या उस सारे अनाज को, ग्रेन को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. तो क्या हमारे पास उतना अनाज होगा कि हम सबको फीड कर सकें. हम आज भी बिल्कुल कट टू कट सिचुएशन में हैं, जिसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी की जो इश्यूज़ हैं. आप पूरी दुनिया में कहीं भी पढ़ सकते हैं कि हम लोग इस वक्त ज़रा सा भी कोई कुदरती आफत आ गई तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा. आज भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इथोपिया जैसी कंट्रीज़, जहाँ पर खाने को नहीं है. सो अगर बाई चांस कल की तारीख में अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि सारे वेजिटेरियन हो जाएं, तो वो जानवर जो बचेंगे लाखों और करोड़ों की तादाद में, वो और हम जो ह्यूमंस, जो 80% लोग हैं 700 करोड़ के लोगों में से, तो करीब 500 करोड़ लोग, अगर वो भी रोज़ कंज्यूम करने लगे, हमारे पास खाना ही नहीं होगा उन सबको फीड करने के लिए. दैट्स अ रियलिटी. अनफॉर्चुनेटली दैट्स ट्रू एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है और इसमें हमको घुसना नहीं चाहिए. अब आते हैं हम लोग स्लॉटरिंग पे. तो डेफिनेटली कॉन्शियस स्लॉटरिंग तो होती है. अब स्लॉटरिंग के से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं बॉडी में से, सबसे पहले ब्लड जो एक्सट्रैक्ट होता है. इंटरनेशनली, इंडिया को हम छोड़ देते हैं, इंटरनेशनली बहुत सारी जगहों पे, खास करके जहाँ पर प्रॉपर स्लॉटरिंग होती है, कमर्शियल स्लॉटरिंग होती है, वहाँ से जो ब्लड उनका उठाया जाता है, उस ब्लड को ड्राई करके दे क्रिएट अ मैन्योर आउट ऑफ इट, जिसको लोग बोलते हैं ब्लड मील. आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे ये वर्ड ब्लड मील और आपको उस पर काफ़ी कुछ पढ़ने मिल जाएगा. इट माइट साउंड वेरी वियर्ड, बट आपके गार्डन में डालने के लिए आज की तारीख में वो जो ब्लड का पाउडर है, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, जो कि बहुत सारे अच्छे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. आपकी सॉइल के लिए बहुत हेल्दी होता है. और उसकी स्मेल की वजह से बहुत सारे ऐसे जानवर जो आपके गार्डन को खा जाते हैं वो नहीं आते. सिर्फ रैबिट, ब्लड मील डाला हुआ जो पौधा होगा उसको खाने के लिए रैबिट जल्दी नहीं आएगा, बिकॉज उसको स्मेल पसंद नहीं आएगी वो, क्योंकि सॉइल में से जो स्मेल आ रही है. एंड ये बोला कि ये बहुत बड़ा साइंस है. जो पुराने लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते थे, वो हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो साइंस ढूंढते थे. सो अब आते हैं हम लोग कुर्बानी के मामले में कि भाई जब ये आप कमर्शियल स्लॉटरिंग कर रहे हो तो घरों पे लाके कुर्बानी क्यों कर रहे हो, क्या ज़रूरत है उसकी, और इज़ इट रियली नेसेसरी. जिस तरीके से उस रिचुअल्स को किया जाता है और जिस तरीके से होना चाहिए, उसमें हमेशा थोड़ा सा फ़र्क होता है. बिकॉज टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, हम इंसान हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर देते हैं. प्रैक्टिकली कुर्बानी शब्द का जो मतलब था या जो मतलब होता है, वो होता है सेक्रीफाइस. क्या हम क्या सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ऐसी कौन सी प्यारी चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हैं जो खुदा की राह में जिसके लिए कहा जाता है कि हम क्या कर सकते हैं. उसके लिए अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो हम सबके पास पशुधन जो होता था वो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ होती थी. हमारे पास लिक्विड कैश नहीं होते थे आम आदमियों के पास. पहले तो करेंसी नहीं होती थी. करेंसी के बाद छोटे छोटे सिक्के आने शुरू हुए, मेटल के सिक्के लोग बनाने लगे थे. और या ट्रेड होता था, वो एक्सचेंज में होता था, बार्टर एक्सचेंज होता था कि जी मेरे पास ये है, आप मेरे से दूध ले लो, मेरे से दही ले लो, मेरे से जानवर ले लो, उसके बदले मुझे आप कुछ और दे दो. सो इट यूज्ड टू बी बार्टर. और जानवर जो होते थे वो हमारी वेल्थ होती थी. जब आप हज़ारों साल पुरानी बात करेंगे तो आप जहीं भी देखेंगे, आपको जितने भी पुराने प्रॉफिट्स की कहानी मिलेगी या और भी लोगों की कहानी मिलेगी, हमेशा आपको पशुधन की बात होगी. जब खास करके जब मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज पशुधन इज़ वेरी वेरी कॉमनली यूज फ्रेज ऑल ओवर. अगेन यू कैन गूगल इट. सो दैट्स एनिमल वेल्थ. अब वो वेल्थ आपको सेक्रीफाइस करनी होती, जिसको आपने पाल पोस के बड़ा किया है. सिमिलरली अगर आप सिम्बॉलिकली देखें तो वो पैसा भी हो सकता है. आज के ज़माने में हमारे लिए शायद वो एनिमल इतना बड़ा न रखता हो, पर आपके लिए पैसा रखता है. बट देन आप उस इकोसिस्टम की बात नहीं करें जिस इकोसिस्टम की वजह से वो डिज़ाइन किया गया था.
वो डिज़ाइन इसलिए किया गया था कि यार जब देखते थे कि यार ये जो बढ़ोतरी जो इन जानवरों की बढ़ोतरी जो है वो बहुत रैपिडली होती है और कभी कभार हमारे को उस पर अंकुश भी लगाना चाहिए। उस अंकुश को लगाने के लिए साल में 1 या 2 बार ऐसे ऐसे मोमेंट आने चाहिए जिसमें हम लोग थोड़ा सा मास किलिंग कर सकें, और मास किलिंग ओनली विल हैपन व्हेन इट विल पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। सी मैं जो बातें कर रहा हूँ ये धर्म में लिखी हुई बातें नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट कोट मी ऑन दिस कि मैंने ये कहा था और इस्लाम ने ये कहा है। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किताबों में उस तरीके से नहीं डिकोड करके लिखी गई होती है, हमको उन चीज़ों को डिकोड करना पड़ता है सिचुएशंस को देख करके कि कौन सी चीज़ के बारे में कहाँ क्या लिखा गया है। सो इस्लाम तो बोलता है आपको कुर्बानी करनी चाहिए बिकॉज इट्स वो आप अल्लाह की राह में आप अपना कुछ कुर्बान कर रहे हैं, अपनी किस प्यारी चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं ये। लेकिन अगर आपको साइंटिफिकली बोलते हैं कि नहीं आपको इसलिए करना चाहिए बिकॉज उसका जो ब्लड होता है वो आपके सॉइल के लिए बहुत अच्छा है और उसके ब्लड को आप बहुत अच्छे से सॉइल में स्प्रेड करें जब आप उसको काट लें, तो आप शायद सोचेंगे अच्छा खाली ब्लड के लिए करना है, आई मे बी नॉट वांट टू डू इट, बट नो इट्स इंपॉर्टेंट, गॉड विल बी हैप्पी टू डू दैट, यू विल सर्टनली डू इट। सो वैसे ही सारे रिचुअल्स जो हैं जितने भी हमको डरा करके सिखाए जाते हैं, आप किसी भी धर्म में आप देखेंगे जब भी आपको इससे भाई भगवान खुश होंगे या ईश्वर खुश होंगे, अल्लाह खुश होंगे, नाराज़ होंगे अगर आप ये नहीं काम करोगे, तो झूठ बोलोगे तो भगवान नाराज़ होते हैं। हमको हर चीज़ के लिए डरा करके सिखाया जाता है, इसलिए ये रिचुअल्स जब बनाए जाते हैं तो उसी तरीके से बनाए गए थे कि कुर्बानी अल्लाह को बहुत प्यारी है और आपको करनी चाहिए। अब था कि कुर्बानी घरों में ला के क्यों की जाती है, कि क्या ज़रूरत है उसके करने की। हमारे पास जो मार्केट में स्लॉटिंग हो रही है, जो कमर्शियल स्लॉटिंग हो रही है वो तो हो रही है, और उसका जो भी एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, जो बॉडी का एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, जो मेन्योर के काम आता है बहुत जगहों पे, या जो आप बेल्ट पहनते हैं, कपड़े पहन रहे हैं, चमड़ों के जूते पहनते हैं, उन चमड़ों का भी उन्हीं स्लॉटर से निकले हुए चमड़ों से ही बनता है। हम उस प्रैक्टिकलिटी को नहीं बदल सकते। हम चमड़ों के कब चीज़ें यूज़ करते हैं, बेल्ट हो, घड़ी हो, मतलब घड़ी के बेल्ट हो, आप जूते हो, बहुत सारी चीज़ें हम, या बैग्स हो, हम बहुत सारी चीज़ें चमड़ों की यूज़ करते हैं और अलग अलग जानवरों के चमड़ों से बनती है वो चीज़ें। सो वो सब वहीं से जाता है। उसकी हड्डियाँ होती हैं वो फिर किसी और काम में जाती हैं, अपना उसके जो क्या इंटेस्टाइन जो एक्स्ट्रा बचे होते हैं जो कंज्यूम नहीं होते वो किसी और काम में जाते हैं, उनका ब्लड जो है वो किसी और काम में जाता है। सो सारी चीज़ें जो इवेंचुअली इन सब चीज़ों से एक्सट्रैक्ट निकलता है, और बाई चांस अगर आपने उसको फेंक भी दिया ना तो वो डिग्रेड हो जाता है, इट्स बायोडिग्रेडेबल इन द एनवायरनमेंट। इट्स नॉट लाइक प्लास्टिक जो कभी ख़राब जो कभी ख़त्म नहीं होगा, वो 10,000 साल बाद भी प्लास्टिक आपका ज़िंदा रहेगा। लेकिन अगर किसी जानवर का कोई भी बोन, कोई भी हिस्सा गलती से आपसे छूट भी गया है बाहर, तो वो एनवायरनमेंट उसको कंज्यूम कर लेगा अपने सिस्टम में, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको जाके चींटी खा लेगी, उसको जाके एक छोटा कीड़ा जो ज़मीन के अंदर रेंग रहा हो वो जाके खा लेगा, पर वो कंज्यूम हो जाएगा, उसको कोई ना कोई कंज्यूम कर ही लेगा, वो ख़राब नहीं होगा, वो एनवायरनमेंट को कोई तकलीफ़ नहीं देगा, अनलेस इट्स इन अ डिफरेंट क्वांटिटी और इट्स नॉट स्टोर्ड इन अ राइट मैनर। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने कहीं भी उठा के फेंक दिया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगेन एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज देन बहुत सारे बैड बग्स उससे क्रिएट हो सकते हैं। द बैड बग्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। सो हम वापस आते हैं कि अब शहरों में आप रहते हैं और शहर में आपको क्या ज़रूरत है। प्रैक्टिकली उसका ब्लड जो है वो फ्लो होना चाहिए ज़मीन के अंदर, जो गटर में चला जाता है, जो हमारे यहाँ पर क्योंकि ज़मीन बची ही नहीं है, हम लोग ने हर जगह पर सीमेंट और कंक्रीट कर दिया हुआ है, तो द ब्लड शुड नॉट गो प्रैक्टिकली गटर में जाने के बजाय वो ज़मीन में जाना चाहिए था। ज़मीन में ब्लड जाने से क्या होता था, वो अंदर जाने के बाद में दूसरे जीव जंतु जो है, बहुत सारे छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं, उनकी खुराक बनता है और उसकी खुराक के साथ साथ वो वापस मेन्योर के काम आता है और प्लांटेशन के काम पाता है। आपको शहरों में भी प्लांटेशन की ज़रूरत है, हमारी ग्रीनरी शहरों से भी ख़त्म होती जा रही है क्योंकि हमारे पास हमारी जो ज़मीन है उसका फर्टिलिटी ख़त्म होती चली जा रही है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये जो एक्ट है ख़ास करके जो ईद के समय वाला, अगर उसको सही तरीके से परफॉर्म किया जाए तो उसकी वजह से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो एक्सट्रैक्ट एक्चुअली बहुत ही बढ़िया मेन्योर की तरह और फर्टाइल क्या करना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम की तरह हमारी ज़मीन में काम आ सकता है। बहुत से लोग करते भी हैं अभी भी जो समझते हैं उन चीज़ों को। कुछ लोग तो ब्लड को कटोरी में डाल करके बाकायदा उसको दफन करते हैं ज़मीन के अंदर। ख़ास करके कौन सा समुदाय है ये, जूस का अगर आप कभी गलती से आप देखें, अगर आपको गूगल में और यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप स्लॉटरिंग ऑफ जूस देखें, कुर्बानी वर्ड यूज़ कर लें या स्लॉटरिंग कर लें, आप जूस कर लें, उनका आपको बिल्कुल अलग सिस्टम मिलेगा। वो पूरे के पूरे ब्लड को एक प्रॉपर कटोरी में डाल करके उसको प्रॉपर तरीके से ज़मीन के अंदर गड़ाते हैं
और क्योंकि उनकी अगेन पॉपुलेशन बहुत छोटी है तो शायद उनके लिए मेंटेन करना बहुत अलग है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। दूसरी बात, एक बात और समझनी पड़ेगी, हिंदुस्तान में अगर इस्लाम से कनेक्टेड किसी भी रिचुअल्स में थोड़े से भी चेंजेस लाने हैं तो मुश्किल इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका डिसीजन कौन लेगा। गवर्नमेंट के लिए वो डिसीजन इसलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज गवर्नमेंट उन्हें आपने राइट्स दे रखे हैं तो आप उनको टच नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी मुसलमान जो है वो ऑलरेडी रूढ़ीवादी इसलिए है बिकॉज उसको कहीं और से इस्लाम मिला हुआ है और वो उसको होल्ड करके रखना चाहता है, तो उसको पता नहीं कि मैं गलत डिसीजन ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ। सऊदी अरब डिसीजन लेगा, सऊदी अरब को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो आकर के हिंदुस्तानी मुसलमानों को आके बताए कि आपको क्या करना चाहिए। सो बहुत सारी छोटी छोटी रिचुअल्स में जो बदलाव की भी ज़रूरत है, या बदलाव से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि उसके प्रैक्टिकलिटी को समझने की ज़रूरत है। वो अगर हम समझने लगें तो बहुत बेहतर होगा। मैं 20 मिनट की वीडियोस में या 25 मिनट का जो भी हमारा वीडियो सब बना है, मेरा सिर्फ सिंपल ये कहना था कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों को साइंस देखें और उसको रिलीजन की तरह ना देखें। बिकॉज रिलीजन में, हर रिलीजन में बलि प्रथा का कहीं ना कहीं मेंशन है, हर रिलीजन में। पर बलि प्रथा के अंदर जैसे कि बहुत से लोगों को, हाँ सॉरी 2 मिनट का मैं टाइम और लूँगा आपसे, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम जो हलाल करते हैं और आप एक झटके से जो मारते हैं वो क्यों करना चाहिए। आप उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप उसको थोड़ा साइंस पढ़ें या झटका और उसके बीच का भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। गूगल पे बहुत सारे आपको उसके वर्जन्स मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। जब आप किसी से झटके से किसी जानवर को मारते हैं ना तो वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो सब कुछ उसका अंदर रुक जाता है, उसका ब्लड, उसका बहुत कुछ, मतलब ब्लड निकलेगा, डेफिनेटली काटेंगे तो आप ब्लड निकलेगा, बट क्योंकि आप झटके से चीज़ को काटते हो तो आपका वो अपनी पूरी वेन्स को दबा देता है। और ये आपके साथ भी होगा, किसी को अचानक आपको पता चले आपको मैं इंजेक्शन लगाने वाला हूँ तो आप अपनी बॉडी को यूँ कड़क कर लेते हैं ना, थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं। सो वैसे ही बॉडी स्टिफ हो जाती है और पूरा ब्लड आउट नहीं हो पाता। लेकिन जब आप हलाल करते हैं तो एक सर्टेन, आप गर्दन के एक सर्टेन हिस्से को ही काटते हैं जिससे ब्लड का फ्लो पूरा बाहर निकल जाता है, प्लस उसको होल्ड किया जाता है 10 से 12 मिनट जब तक वो पूरे ब्लड को थ्रो ना कर दे। बिकॉज ब्लड का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दैट मीट इज़ नॉट हेल्दी। क्योंकि इंसान का मैक्सिमम बीमारियां जो हैं वो, या जानवर के किसी की भी ब्लड के थ्रू ही आपकी वेन से फैलती हैं, चाहे वो कैंसर हो चाहे कोई भी बीमारी हो। वो ब्लड पूरा दिन आपकी बॉडी में यहाँ वहाँ सर्कुलेट होता रहता है और उसके ज़रिए वो बीमारियाँ फैलती हैं। तो अगर उस जानवर में पहले से कोई बीमारी होगी भी तो वो ब्लड के उसका अगर बाहर निकल जाएगा तो उसकी बीमारी भी साथ में निकल जाएगी। दैट मीट विल बी सेफ टू कंज्यूम। दैट्स वाई द हलाल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज़ कम्पेयर टू झटका। अगेन मैं बोला रिलीजन में, क्योंकि इस्लाम बहुत बाद में आया था तो बाकी रिलीजन से उसने जितनी भी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की होगी, सीखा होगा, तो उन्होंने वो पॉइंट सीख लिए जो बहुत ज़रूरी थे, जिनको समझ में आएगा कि नहीं यार मेरे को हलाल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर लगता है बिकॉज दैट्स मोर हेल्दी and that's why that was given as a choice that you have to do it and now people follow it. So I'm not saying that you are wrong or I'm right or something like that. It's about you need to know the logic behind it, you need to know the science behind it. So कुर्बानी के पीछे का जो सबसे बड़ा साइंस है कि आपको पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना है एनिमल्स की, और आप कमर्शियल करने के बदले जब साल में 1 या 2 बार जब वो रिचुअल्स अपने इलाके में, अपने शहरों में, अपने गांव में करते हैं, जहां पर भी करते हैं, तो उससे कम से कम आपकी यहाँ की भी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो बेटर हो जाती है। और आपको कई बार आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कल के जिस तरीके से एनवायरनमेंट बदल रहा है, जिस तरीके से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बदल रहा है अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों बाद हमारे को फिर से खाने के लिए कुछ ना मिले। बिकॉज जिस तरीके से आपने पिछले 2 महीने 1 महीने की बात देख लीजिए, बारिश की वजह से पूरी दुनिया में तबाही हुई है। कितनी जगह फसलें ख़राब हो गई हैं, कितनी जगह पे बड़े बड़े गोडाउन जो अनाजों के भरे पड़े थे वो ख़राब हो गए हैं। आप क्या हो सकता है अगले 1 साल या 2 साल के बाद अनाज ही इतना ना बचे कि आप खाना खा सकें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, घूम फिर के उन जानवरों के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ेगा। पर अगर आपको स्लॉटर करना आता ही नहीं होगा, या आप उससे डर रहे होंगे, या आप उसके बारे में अगर आप एक भयावह ध्यान रखेंगे तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ। सोचिए इस बात को कि कल को आपको पास एनिमल तो है लेकिन आपको पता ही नहीं कि उसको कंज्यूम कैसे करना है, बिकॉज आप डेफिनेटली उसको मारना नहीं चाहते। हम हमारे दिमाग में जो दया भावना आती है कि यार जानवर को मैं कैसे मार सकता हूँ, पर हम खाते सब हैं अनफॉर्चुनेटली।
नाउ मे बी यू हैव टू लर्न और मे बी यू टू रीच टू दैट क्लैरिटी कि आज से 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ ना बचे। ऐसे आपको कहानियाँ पढ़ने मिलेगी बहुत सारी जहाँ इंसान ने इंसान को खाया हुआ है अपनी जान बचाने के लिए। कालागाटा मारू करके कभी पढ़िएगा, एक जहाज़ की कहानी है जहाँ यहाँ से हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ी सरदारों की कम्युनिटी कनाडा गई थी यहाँ से माइग्रेट होने के लिए करीब 100 साल 120 साल पहले। आई थिंक 1920 या 1924 की कहानी है। कालागाटा मारू पढ़िएगा उसके बारे में। और उनको वहाँ पर वीज़ा नहीं मिला था, उनके शिप को एंट्री नहीं मिली थी, और वो शिप जब वापस आ रहा था तो वापस आते वक्त लोगों के पास अनाज ख़त्म हो चुका था, खाना ख़त्म हो चुका था जितना वो लोग राशन लेके गए थे। तो लोगों ने अपने आप को फिर वहाँ पर सेक्रीफाइस किया कि आई एम इन अ बैड शेप, प्लीज़ ईट मी अप। ये प्रैक्टिकल है, ये रियलिटी है। और ये कालागाटा मारू की तो कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आराम से आप ढूंढ सकते हैं। ऐसे कई इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ लोगों ने, इंसानों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है बाकी लोगों की भूख मिटाने के लिए। तो जब इंसान का सेक्रीफाइस हो सकता है, लोग इंसान को खा सकता है, तो जानवरों को खाने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द फूड चेन। देयर इज़ नो डिबेट, देयर शुड बी नो डिबेट ऑन दैट एटलीस्ट। हाँ, रिचुअल्स को लेकर के जो इश्यूज़ हैं, मैं अभी भी चाहूँगा कि रिचुअल्स में थोड़े सुधार की ज़रूरत है, लेकिन रिचुअल्स के पीछे की रीज़न को अगर आप समझने लगें और उसको उस रीज़न के हिसाब से अगर आप उसको संभालने लगे, उस पर काम करने लगे, तो मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ काफ़ी बेहतर होगी। आई एम सॉरी मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया है, बिकॉज मैं चाहता था कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, सबके बारे में पता हो। इनफैक्ट हम इस पर बहुत मज़ा आएगा अगर हम कभी किसी दिन बैठ करके आमने सामने सवाल जवाब कर सकें और चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। बिकॉज हमको कई बार एक संवाद करना बहुत ज़रूरी है। हम बातें नहीं करते आपस में एक दूसरे से, और हम एक उस माहौल में रह जाते हैं कि यार कौन पूछे, किसी को बुरा लग जाएगा। कोई बुरा मानने की बात नहीं है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं और ये साइंस है। साइंस पे सवाल करने चाहिए। रिलीजन का साइंस को डिकोड करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक आई मस्ट क्लोज नाउ बिफोर यू guys get bored of my extempore conversation. This is how I usually talk when I am in the talking mode. But I hope you will get some little material out of this conversation. You can ask any question if you have clarifications. I'm ready to support. Maybe I would be the person who you can contact for anything, or maybe you can write to me directly also. I'm available on all the social media platforms. God bless you. Take care.